Hello guys and welcome to Manual Education. So we are back with another video of MBA CAT covering the IIMs, and today we're gonna be looking about the IIM Sambalpur, which is one of the most prestigious campuses if you talk about the IIMs. And guys, we have also covered a lot of IIMs. If you want to know about all the other IIMs, we have covered the same. You can go and watch that video on Manual MBA entrance. You'll get all the IIMs related videos over there. And today in this video we'll be looking about the IIM Sambalpur. We'll be looking about the eligibility criteria, the selection process, fees, the seats and the placement stats you'll be getting from IIM Sambalpur, one of the prestigious IIMs. तो अगर आप एक CAT aspirant हो जो कि IIMs टारगेट कर रहे हो, so you should definitely टारगेट दी IIM Sambalpur. और क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, विल बी लुकिंग एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल दी एंड. और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को जो कि IIMs को टारगेट कर रहे हैं थ्रू CAT, सो दैट दे कैन बी अवेयर ऑफ IIM Sambalpur. बट बिफोर वी मूव ऑन, देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट that all the specific videos related to MBA, be it latest update notifications, live paper analysis or workshops, will be firstly available on Manual MBA Entrance channel. तो अगर आप ये वीडियो Manual MBA Entrance पर देख रहे हो तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो. अगर आप ये वीडियो Manual Education पर देख रहे हो, then the link for MBA Entrance is in the description. If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 or 54. And if you're in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, Dadar, Borivali, Thane, and we are soon coming up with a new center in Pune as well. You can also follow us on social media such as Telegram, Instagram, Facebook, and don't forget to subscribe the YouTube channel Manual MBA Entrance for all the latest updates. Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock test, books and ebooks, mentorship strategies, and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Now let's have an overview about the IIM Sambalpur. Located amidst hills and river, the temporary campus of IIM Sambalpur is functioning in a state-of-the-art buildings at Jyoti Vihar, Burla. अब ये temporary क्यों है? Because ऐसी एक न्यूज़ आई है कि दे विल बी शिफ्टिंग दी कैंपस. तो एक अच्छी बड़ी जगह पर ये एक नया कैंपस ओपन करने वाले हैं. हालांकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में बता दिया गया है कि आप अपनी SIPs पूरी कर लो और उसके बाद दे विल बी मूविंग इनटू दी न्यू कैंपस. तो ये इस करके आप अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखोगे तो ये टेम्प्रेरी कैंपस उन्होंने हर जगह मेंशन किया हुआ है. द एजुकेशन हब कंप्राइजिंग द संबलपुर यूनिवर्सिटी and elite medical and engineering university, spec'd in the picturesque settings and nestled in Bara Pahad, also known as 12 Hills. The temporary campus lies at one end of Hirakud Dam, the world's longest earthen dam, and is surrounded by mountains, verdant forest, and Devigarh Wildlife Sanctuary, making the town very picturesque and close to nature. तो ये संबलपुर जो जगह है ये काफ़ी क्लोज टू द नेचर या फिर एक स्टेट ऑफ द आर्ट जगह आप बोल सकते हो. यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सीनरिक व्यू भी मिलेगी, पिक्चर्स की सेटिंग्स मिलेंगी, एंड यहाँ पर आपको पढ़ने का भी दिल करेगा इफ़ यू गो इनटू दिस कैंपस. तो जो नेचर का एडेड बेनिफिट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. ऑल इन ऑल अ वेरी डिसेंट कैंपस टू टारगेट. वो तो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे ही. लेट्स लुक एट दी प्रोग्राम्स ऑफर्ड ओवर हियर. तो यहाँ पर 6 तरीके के आपको प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे पहला आपका मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका रेगुलर MBA होने वाला है 2 साल का. फिर आएगा ये आपका एग्जीक्यूटिव MBA. मोस्टली इसकी आपको क्लासेस वीकेंड्स में ही मिलेंगी एग्जीक्यूटिव MBA की. देन कम्स MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. ये IIM संबलपुर जो इनका दिल्ली सेंटर है, संबलपुर में नहीं, दिल्ली सेंटर जो आता है ग्रेटर नोएडा में. ओके तो ये जो दिल्ली वाला सेंटर है वहाँ पर आपको MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल का प्रोग्राम ऑफर होगा. फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव PhD, फिर PhD और MDP प्रोग्राम. तो ये सारे प्रोग्राम्स आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो. बट इन दिस वीडियो विल बी स्पेसिफिकली लुकिंग अबाउट द मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका रेगुलर MBA होने वाला है. इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, लेट्स लुक एट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है. अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री सच एज CA, CS, ICWA या फिर FIEI. तो अगर आपने ये सारी डिग्रीज़ भी हासिल की है, CA, CS, ICWA या फिर FIEI विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट CGPA. अब ये 50% स्टैंड्स फॉर जनरल कैटेगरी या फिर आप ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए बोल सकते हो. तो ये 50% अगर आपने बैचलर्स डिग्री या फिर ये प्रोफेशनल डिग्रीज़ में स्कोर किया है या फिर इक्विवेलेंट CGPA तो आप एलिजिबल हो. और अगर आप SC, ST या फिर PWD से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स यहाँ पर लेके आने. तो यहाँ पर आपके लिए 5% जो है
रिलैक्सेशन हो जाएगा परसेंटेज में। कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई एंड अ वैलिड कैट स्कोर इज अ मस्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैट के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और कोई एग्जामिनेशन के स्कोर एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा आपके कैट एग्जामिनेशन के लिए। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द कैट, you can simply call a number 8828581455 and you can talk to our counselors about the batches। जल्दी से एनरोल हो जाओ बिकॉज कैट के लिए अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। और अगर इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपको 3 स्टेप्स या फिर 3 स्टेजेस आपको पार करने होंगे। सबसे पहला ऑब्वियसली आपको कैट का एग्ज़ाम लिखना होगा। इसमें आपको एक सूटेबल परसेंटाइल स्कोर करना होगा जो कि IIM संबलपुर एक्सेप्ट करता हो। फिर होगा आपका राउंड 2 विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू एंड देन होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। अब ये पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर इन्होंने पर्सनल अपीयरेंस बोला है बट इट्स वन ऑन द सेम। आप कंफ्यूज मत होना कि इनकी वेबसाइट पर पर्सनल अपीयरेंस लिखा है, पर्सनल इंटरव्यू कहीं मेंशन नहीं किया है, तो पर्सनल इंटरव्यू होगा या नहीं, इट्स वन एंड द सेम। और अगर इसकी मिनिमम परसेंटाइल देखी जाए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए वर्बल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग DILR ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड परसेंटाइल होना चाहिए आपका वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। ओवरऑल टोटल परसेंटाइल जो होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए वो है 92 परसेंटाइल। तो ये आपकी सेक्शनल परसेंटाइल है। यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, DILR में ग्रेटर देन इक्वल टू 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ओवरऑल 70 परसेंटाइल। NC-OBC से बिलोंग करते हो तो VARC में आपका 45, DILR में ग्रेटर देन इक्वल टू 45 और कॉन्ट्स में भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 45, ओवरऑल 74 परसेंटाइल। SC से अगर बिलोंग करते हो तो VARC में ग्रेटर देन इक्वल टू 35, DILR में ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉन्ट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 35, टोटल परसेंटाइल 54। ST से अगर आप बिलोंग करते हो VARC में ग्रेटर देन इक्वल टू 25, DILR में ग्रेटर देन इक्वल टू 25, कॉन्ट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 32.5 और ओवरऑल जो आपका परसेंटाइल इस सेक्शन में होना चाहिए वो है, इस कैटेगरी के लिए होना चाहिए वो है 40। DAP VARC में ग्रेटर देन इक्वल टू 25, DILR में ग्रेटर देन इक्वल टू 25, क्वांट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 32.5, ओवरऑल 40। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि अगर फीमेल कैंडिडेट हैं अंडर जनरल कैटेगरी तो जो उनका ओवरऑल कट ऑफ परसेंटाइल होना चाहिए सेकेंड स्टेज के लिए एलिजिबल होने के लिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80, इतना तो होना ही चाहिए। और सेक्शनल कट ऑफ 65 परसेंटाइल। तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो जनरल कैटेगरी में तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो ओवरऑल कट ऑफ हो परसेंटाइल में टू बी एलिजिबल फॉर द PA प्रोसेस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 और आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है शुड बी 65 परसेंटाइल, उससे नीचे तो नहीं लेके आना है आपको। मेरिट लिस्ट की क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पर आपके कैट स्कोर को 30% वेटेज मिलता है। पर्सनल अपीयरेंस उसके लिए आपको 25% का वेटेज है। एकेडमिक प्रोफाइल जो कि आपका 10th और 12th हो गया उसके लिए 15% का वेटेज है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस तो उसके लिए 15%। डाइवर्सिटी 5%। अब ये जेंडर डाइवर्सिटी होती है, ओके, मेल एंड फीमेल का रेशियो जो होता है। अब इसमें और एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि कैट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कैट स्कोर अमॉन्ग कैंडिडेट्स who have applied to IIM Sambalpur and attended PA process. It is clarified that the CAT scale score would be used and not the CAT percentile. तो आपको CAT में अच्छा परफॉर्म भी करना है, वहाँ पर अच्छा स्कोर भी लेके आना है, तो ये चीज़ भी बहुत ध्यान देने वाली है यहाँ पर। और अगर हम एकेडमिक प्रोफाइल की तरफ देखें तो यहाँ पर आपके 10th स्टैंडर्ड को मिलते हैं 2%, 12th को मिलते हैं 5%, अंडर ग्रेजुएशन को मिलते हैं 8%। और अगर रेंज ऑफ मार्क्स की बात की जाए लेस देन और इक्वल टू 60 है तो 10th क्लास के लिए आपको 0.2 है, फॉर 12th क्लास 0.5 और अंडर ग्रेजुएशन के लिए 0.8। 60.01 से 64 तक 0.4 10th क्लास के लिए, 1 12th क्लास के लिए और 1.6 अंडर ग्रेजुएशन के लिए। 64.1 से लेकर 68 तक 10th क्लास के लिए 0.6, 12th क्लास के लिए 1.5, अंडर ग्रेजुएशन के लिए 2.4। अब ये सारे जो नंबर्स हैं वो आपको परसेंटेजेस में है, ओके। 68.1 से लेकर अगर आप 72 के बीच में स्टैंड करते हो तो 10th क्लास के लिए 0.8 है, 12th क्लास के लिए 2.0,
अंडर ग्रेजुएशन के लिए 3.2, 72.1 से लेकर 76 तक अगर आप स्टैंड करते हो तो 10th क्लास के लिए 1, 12th क्लास के लिए 2.5, अंडर ग्रेजुएशन के लिए 4, 76.1 से लेकर 80, 10th क्लास के लिए 1.2, 12th क्लास के लिए 3, अंडर ग्रेजुएशन के लिए 4.8, 80.01 से लेकर 84 के लिए फॉर 10th क्लास 1.4, 12th क्लास 3.5 एंड अंडर ग्रेजुएशन के लिए 5.6, 84.01 से लेकर 88 तक 1.6 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए 4, अंडर ग्रेजुएशन के लिए 6.4, 88.01 से लेकर 92 फॉर 10th क्लास 1.8, फॉर 12th क्लास 4.5, फॉर अंडर ग्रेजुएशन 7.2। और अगर आप 92 से ग्रेटर देन इक्वल हो तो 10th क्लास के लिए 2, 12th क्लास के लिए 5.0 और अंडर ग्रेजुएशन के लिए 8.0 की आपको वहाँ पर मार्किंग्स देखने को मिलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी काम आने वाला है। और अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पर एक्सपीरियंस इन मंथ्स दिया हुआ है और उसके कितने स्कोर आपको मिलने वाले हैं वो भी बताया। अगर आपको 6 मंथ्स या फिर उससे कम समय का एक्सपीरियंस है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। 7 मंथ से लेकर 12 मंथ्स का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 9 मार्क्स, 13 मंथ से लेकर 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 12, 25 से लेकर 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो 15, 37 से लेकर 48 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो 10, 49 से लेकर अगर 60 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो 7, और अगर आपके पास 60 या फिर उससे ज़्यादा है तो भी यहाँ पर कोई स्कोर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी हैंडी होने वाला है, बट वो रेलेवेंट होना चाहिए। इट शुड बी अ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। ऐसा ना हो कि आपने कहीं और इंटर्नशिप की है एंड यू कॉल इट एज अ वर्क एक्सपीरियंस, तो ये वो यहाँ पर नहीं चलेगा, बिकॉज दे डोंट काउंट इंटर्नशिप्स या फिर लाइव प्रोजेक्ट्स एज वर्क एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आपके पास एक रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर भी हो उस पर्टिकुलर कंपनी का जहाँ पर आप जॉब करते थे, और अगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड वो सारे आप संभाल कर रखो। इट्स रियली गोना बी वेरी हैंडी इन योर सिलेक्शन प्रोसेस। और अगर अब डाइवर्सिटी की बात की जाए, यहाँ पर मेल्स के लिए तो कोई स्कोर नहीं है, बट यस फीमेल और ट्रांसजेंडर्स के लिए 15 का स्कोर इन्होंने यहाँ पर अलॉट किया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर हम रिजर्वेशंस की बात करें तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को 15% की रिजर्वेशन है। दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू दी सीट्स। आगे हम सीट्स भी देखेंगे। शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% का रिजर्वेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर एनसीएल के लिए 27%, डीएपी 5% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की रिजर्वेशन यहाँ पर अलॉट की गई है। और अगर हम इसकी सीट्स की बात करें तो एमबीए के लिए आपको मिलते हैं यहाँ पर 210 सीट्स, और जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था कि रिजर्वेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो 210 सीट्स में से 15% तो शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5 शेड्यूल ट्राइब के लिए, 27 ओबीसी एनसीएल के लिए, 5% डीएपी के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर हम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एमबीए फुल टाइम जो कि आपका रेगुलर एमबीए है उसकी फ़ीस होगी 13 lakhs फॉर 2 years, और इसका अगर हम मिसलिनियस एक्सपेंसेस हम ऐड करें तो 3 to 4 lakhs आप ऊपर पकड़ सकते हो। ये फिर हो सकता है आपके मेस या फिर आपके हॉस्टल चार्जेस या फिर आपका कोई भी मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गया, तो वो 3 to 4 lakhs आप एक्स्ट्रा पकड़ कर चलो। बट येस ओवरऑल जो आपकी ट्यूशन फ़ीस 2 years के लिए होने वाली है वो है 13 lakhs। तो काफ़ी मिनिमल कॉस्ट भी है। 2 साल आप IIM में बिताने वाले हो विथ 13 lakh रुपीज़ एज योर फी स्ट्रक्चर, तो काफ़ी मिनिमल है। एंड IIM संबलपुर से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, बिकॉज जो इनकी समर प्लेसमेंट्स है अगर आप इस पर ध्यान दें तो हाईएस्ट स्टाइपेंड जो गया है वो है 2 lakhs का, एवरेज स्टाइपेंड जो गया है वो है 65,382 का, और मीडियन भी 40,000 का स्टाइपेंड है। तो इट्स अ वेरी गुड नंबर। और अगर हम टॉप 10 स्टूडेंट्स की बात करें तो इस बैच में 1,83,712 का इनको पैकेज मिला है। टॉप 25 को 1,35,000 एंड टॉप 50 को 1,02,000 का। मीडियन भी इनका जो है वो टॉप 10 के लिए 1,76,000, टॉप 25 के लिए 1,19,000 एंड टॉप 50 के लिए 90,000। तो अगर आप टॉप 50 में भी स्टैंड करते हो तो भी आप काफ़ी अच्छा यहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज योर समर प्लेसमेंट्स ले सकते हो। और अगर हम फाइनल प्लेसमेंट की बात करें, जब आपके 2 साल का MBA ख़त्म होने वाला होगा और उस टाइम पे आपके जो प्लेसमेंट्स होंगे, तो
तो जो हाईएस्ट डोमेस्टिक यहाँ पर प्लेसमेंट गया हुआ है वो है 64 lakhs। जो हाईएस्ट इंटरनेशनल गया है वो भी 64,15,000। एवरेज 16,63,000 और मीडियन जो है वो है 16 lakhs। तो ये एवरेज और मीडियन काफ़ी अच्छा है कि दोनों ये आपको 16 lakhs के पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। बिकॉज आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 13 लाख रुपीज़ फॉर 2 years। तो आपकी एवरेज और मीडियन सैलरी आपके फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और हाईएस्ट डोमेस्टिक तो आप देख ही चुके हो कि 64 lakhs तक यहाँ का इनका प्लेसमेंट गया हुआ है। और एवरेज टॉप 10 जो स्टूडेंट्स थे बैच को मिला है 31 lakhs का पैकेज। टॉप 25% को मिला है 25 लाख का पैकेज। टॉप 50 को मिला है 20 लाख का पैकेज। और अगर मीडियन की बात की जाए तो टॉप 10 को मिला है 23, टॉप 25 को मिला है 22 lakhs और टॉप 50 को मिला है 17 lakhs। और कंपनीज भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, जैसे डेलॉयट आपको कैंपस में आकर रिक्रूट करता है, फिर KPMG है, अमूल जैसी बड़ी कंपनी ये आपको विद इन कैंपस आकर रिक्रूट करने वाली है। सो वाई नॉट टारगेट IIM संबलपुर। इस IIM के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस IIM। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आप देख ही चुके हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगने वाली है और आपको ROI कितना अच्छा यहाँ से प्रोवाइड होने वाला है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस। हमने और भी IIMs कवर किए हैं, यू कैन चेक आउट दोज वीडियोज़ ऑन मेन्यूअर MBA एंट्रेंस। और अगर आप ये वीडियो मेन्यूअर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को जो कि IIM के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट दे कैन बी अवेयर अबाउट दी IIM संबलपुर की इतना अच्छा पैकेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। If you have any doubt and queries regarding the video, you can write down in the comment section. We'll definitely work on the same. और अगर आपको कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, you can write down in the comment section too. We'll definitely get back to you. And if you want to start your preparations, you can simply call our number 8828581455 for live class and online session. For the classroom coaching, you can visit our centers Dadar, Borivali, Vasai and Thane. So that's pretty much it for the video. I'll see you in the next one.